So hello everyone, welcome again to live session of Manu Law classes. I am Dinesh Kumar and I am former assistant professor of law at Campus Law Center, Law Faculty, Delhi University, and presently I am working as an academic head of Manu Law classes. So dear students, in today's session I will discuss with you some basic concepts of law of torts. But before moving to the discussion part, there is an important announcement for all of you. Admissions are open at Manu Law classes for upcoming batch of 2022 and 2023, and all of you may get yourself enrolled with us for getting the best result. And for more information, you can dial the given number on screen, that is 9971 444 054. Dear students, the date of CLAT 2022 examination is 8th May 2022 and the date of CLAT 2023 exam is 18 December 2022. So prepare yourself accordingly. So now we come to the main discussion part of law of tort. So basically you may not be aware about the technical term of law like injury, like crime. So I am starting it from wrong, the term wrong. You may be able to understand the word wrong. So first of all, our point is that what is wrong? So basically wrong can be defined as anything or any act which is not according to the law or which is not according to the norms of the society, and these norms are set by the society from time to time. Means wrong क्या है? Wrong को हम ऐसे समझते हैं कि कोई भी एक्ट जो लॉ के अनुसार नहीं है या जिस एक्ट को लॉ अलाउ नहीं करता उसको हम गलत मानते हैं, या कोई एक्ट जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार नहीं है, that is also considered as wrong. Now these wrong can be classified into further subcategories, and one of the category is legal wrong and the other category is moral wrong. So now question arises, what is legal wrong? कि legal wrong क्या है? So legal wrong क्या है? Any wrong which is not according to law. कोई भी wrong जो law के अनुसार नहीं है, that is called legal wrong. Now we come to the next, that is moral wrong. So what is moral wrong? Moral wrong is any act which is not according to the norms of the society which have been set by the society from time to time. For example, if we don't feed a beggar and he dies because of it, then it may be considered as a moral wrong. ठीक है? But as far as the legal wrong is concerned, if we commits any offense, suppose one person commits the murder of other person, then it is legal wrong. So wrong दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला प्रकार legal wrong and second moral wrong. Now these legal wrong can also be further classified into two categories or two kinds, and one is criminal wrong and second is civil wrong. So criminal wrongs are generally called offense. Offense means aparadh, and civil wrongs are called torts. So in today's lecture I will discuss with you some basic concepts of law of torts. Now we will understand the basic difference between legal wrong and moral wrong. These are two wrong, but there should be some basic difference in these two wrong as well. So what is legal wrong? Legal wrong means any act or any illegal omission which is not according to the law of a nation. For example, theft, committing robbery, committing kidnapping, committing abduction, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं. All these are the example of legal wrong. Second, now we come to the moral wrong. Moral wrong में क्या होता है? Any wrong which is wrong according to the norms of the society. So moral wrongs जो होते हैं हमारे, these are not wrong according to law. कानून इनको wrong consider नहीं करता, बल्कि हमारी सोसाइटी इनको wrong consider करती है. For example,
इफ आई डोंट गिव फूड टू अ बेगर एंड दैट बेगर डाइज बिकॉज ऑफ हंगर, अगर मैं किसी भिखारी को खाना नहीं देता हूँ और भिखारी उस खाना ना मिलने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है, सो क्या मेरी कोई लीगल लाइबिलिटी होगी? सो आंसर इज नो, आई वॉन्ट बी लाइबल फॉर द डेथ ऑफ दैट बेगर। अब मैं लाइबल क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि आई वॉज नॉट हैविंग एनी लीगल ड्यूटी टू प्रोवाइड फूड टू दैट बेगर, मेरी कोई लीगल ड्यूटी नहीं थी ताकि मैं उस बेगर को कोई भी फूड प्रोवाइड करूं। नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, इट इज अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ लॉ। सो लीगल रॉन्ग क्या होता है? लीगल रॉन्ग अगेंस्ट द मैंडेट ऑफ लॉ होता है। मीन्स लॉ हमको कहता है कि या तो हमें कोई पर्टिकुलर काम करना चाहिए, तब हम उस काम को ना करें, दैट इज कंसिडर्ड लीगल रॉन्ग। या लॉ हमसे मना करता है कि वी शुड नॉट डू ए पर्टिकुलर एक्ट, बट इफ वी आर डूइंग दैट एक्ट देन इट इज आल्सो कंसिडर्ड अगेंस्ट द लॉ। अब हम इसके दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा कि लॉ हमें कहता है कि हमें कोई काम करना चाहिए लेकिन हम उसको नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, लॉ सेज दैट वी शुड वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइव द कार। जब हम कार ड्राइव करते हैं तो हमें सीट बेल्ट पहननी चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं पहनते सो इट इज रॉन्ग, इट इज लीगल रॉन्ग, इट इज रॉन्ग अगेंस्ट द और इट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट। सिमिलरली लॉ हमसे कहता है दैट वी शुड नॉट कमिट द मर्डर ऑफ समवन, हमें किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, बट इफ वी कमिट द मर्डर ऑफ समवन देन वी आर लाइबल टू गेट द पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 302 ऑफ IPC। नाउ वी कम टू moral wrong. So moral wrong, these are based upon the society or thinking of the society, but if we commit any moral wrong then we don't get any punishment from law. So हमारे law में कोई punishment नहीं मिलता और we are not liable to get any punishment by the law. Now we come to the differences between criminal wrong and civil wrong. सो लीगल रॉन्ग को हमने फर्दर सब क्लासिफाइड किया एंड नाउ वी कम टू द क्रिमिनल रॉन्ग एंड सिविल रॉन्ग। सो व्हाट इज क्रिमिनल रॉन्ग? सो क्रिमिनल रॉन्ग इज कंसिडर्ड द रॉन्ग अगेंस्ट होल सोसाइटी। किसी भी क्रिमिनल रॉन्ग को या किसी भी ऑफेंस को वी कंसिडर्ड रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। हम क्रिमिनल रॉन्ग को पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट रॉन्ग क्यों मानते हैं? उसके पीछे एक रीज़न है। क्यों? जब भी कोई हमारी सोसाइटी में क्राइम कमिट किया जाता है तो उस क्राइम से पूरी सोसाइटी अफेक्ट होती है एंड दैट इज़ द रीज़न ऑल द क्राइम्स आर कंसिडर्ड रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझते हैं, इफ़ अ मर्डर इज कमिटेड इन पर्टिकुलर लोकेलिटी और पर्टिकुलर एरिया देन ऑल द इनहेबिटेंट ऑफ दैट एरिया विल हैव द फियर इन देयर माइंड। सो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कॉलोनी में एक मर्डर किया जाता है तो वहाँ के इनहेबिटेंट मीन्स रहने वाले लोग सबके माइंड में एक फियर होगा। सो दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड रॉन्ग अगेंस्ट द होल सोसाइटी। नाउ वी कम टू द सिविल रॉन्ग। सो सिविल रॉन्ग आर नॉट सो हार्श इन नेचर। सिविल रॉन्ग जो होते हैं हमारे वो इतने हार्श नेचर में नहीं होते हैं एंड दीज आर कंसिडर्ड रॉन्ग अगेंस्ट इंडिविजुअल। नाउ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ सिविल रॉन्ग। सपोज one of the candidate is having his or her CLAT examination tomorrow, but his neighbor is listening the music in loud sound. So अगर कल आपका एग्ज़ाम है और आपका नीबर आज तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहा है, so that person is also committing something wrong. लेकिन ये जो wrong है, this wrong will be considered as civil wrong and it will not affect the whole society. ये पूरी सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करेगा बल्कि इट विल ओनली अफेक्ट यू, ये केवल आपको ही अफेक्ट करेगा। सेकेंड, नाउ वी कम टू द सेकेंड पॉइंट, पार्टीज इन्वॉल्व। मीन्स जब भी कोई क्राइम होता है सोसाइटी में देन हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन द कमीशन ऑफ दैट क्राइम। सो इन द केस ऑफ क्रिमिनल रॉन्ग और इन द केस ऑफ ऑफेंस 3 parties are involved and one is accused, second is victim and third is state. So now we understand what is accused or who is accused. So accused is a person who commits an offense. Accused कौन होता है? जो person offense को करता है. So he is also associated or he is one of the party in the crime. Second is victim. तो victim कौन है? Victim is the person against whom an offense is committed. Victim वो person होता है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस को कमिट किया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें, दिस अशोक हैज कमिटेड मर्डर ऑफ मोहन, सो इन दिस केस अशोक इज एक्यूज पर्सन एंड मोहन इज विक्टिम, क्योंकि मोहन का मर्डर हुआ है. नाउ if we see the definition of victim according to section 2WA of CRPC, then it provides that all the person who are affected by that particular crime are called victim. For example, अगर इस given example मोहन अपने परिवार में मेन ब्रेड अर्नर था, मेन पैसे कमाने वाला था, and his murder is committed by Ashok, so the family member of Mohan like wife, his children and parents, they may also be considered as victim. Now we come to third is the state. So in the every criminal case state is also a party. अब आप एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सर स्टेट पार्टी क्यों होता है, तो इसका आंसर ये है, सिंस इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, and if any person commits any offense in the society, then that person violates the duty of state to maintain the law and order. Means स्टेट की ये ड्यूटी होती है कि वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और अगर कोई पर्सन सोसाइटी में ऑफेंस करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस पर्सन ने सोसाइटी के लॉ, स्टेट के जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की ड्यूटी है उसका वायलेशन किया है, इसीलिए स्टेट उस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लाता है. नाउ वी कम टू द parties involved in the cases of civil wrong. So in civil wrong there are two parties and one is plaintiff and other is defendant. अब plaintiff कौन होता है? So plaintiff is the person who bring action against the wrongdoer or the person who has committed tort. For example, Mohan has thrown garbage in front of the house of Sohan. अगर मोहन ने सोहन के घर के सामने कुछ गार्बेज, कुछ कूड़ा कचरा फेंका, तो यहाँ पर किसका लॉस हुआ? सोहन का, क्योंकि कूड़ा किसके घर के सामने फेंका गया है? सोहन के. सो हेयर सोहन विल ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट मोहन एंड सोहन विल बिकम प्लेंटिफ. तो प्लेंटिफ कौन होता है? द पर्सन हु ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट. सिंस यहाँ पर सिविल रॉन्ग किसने किया है? हेयर सिविल रॉन्ग हैज बीन कमिटेड बाय द मोहन, so Mohan will be defendant. So in this case Sohan will bring action against Mohan and the case will be like this, Sohan versus Mohan. Okay, so now we come to third point. Action is brought by the state, we understood it, and in the case of civil wrong action is brought by that individual against whom any tort has been committed. In the case of crime, punishment is given. So if a person has committed offense, then that person is liable to get the punishment. And in the punishment, he can be given the various kinds of punishment, like the death penalty, like the life imprisonment, like forfeiture of property, like fine, etc., etc. But in the case of tort, punishment is not given, or the defendant is not sent to imprisonment. Rather, डिफेंडेंट इज लाइबल टू पे कंपेंसेशन. अब कंपेंसेशन क्या होती है? कंपेंसेशन का मतलब होता है कि इफ ए पर्सन हैज सफर्ड सम लॉस एंड सम मनी इज गिवन टू दैट पर्सन, देन दैट पर्सन विल बी ऑन दैट पोजीशन एज ही डिड नॉट सफर एनी लॉस. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपका 10,000 रुपीज़ का नुकसान किया और आप मेरे खिलाफ एक्शन लाए, कोर्ट ने मुझे ऑर्डर दिया कि आई शुड गिव यू 10,000 रुपीज़. कोर्ट ने मुझे ये ऑर्डर दिया कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूँ, और मैंने आपको 10,000 रुपीज़ दे दिए. अब ऐसा माना जाएगा कि आपके साथ कोई नुकसान नहीं हुआ और आपका कोई नुकसान नहीं हुआ. सो इन द केस कंपेंसेशन कैन बी ऑफ टू काइंड. वन इज लिक्विडेटेड एंड अदर इज अनलिक्विडेटेड. तो कंपेंसेशन दो तरह की होती है. पहली होती है लिक्विडेटेड एंड दूसरी होती है अनलिक्विडेटेड. लिक्विडेटेड क्या होती है? लिक्विडेटेड मीन्स अ कंपेंसेशन विच इज प्री डिसाइडेड बाय द पार्टीज. लिक्विडेटेड कंपेंसेशन वो कंपेंसेशन होती है जो पार्टीज पहले आपस में डिसाइड कर लेती हैं, एंड इट इज फाउंड इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज एंड
there is a clause in the contract itself that if any party will commit the breach, then that party will be liable to pay 10,000 rupees or 1 lakh rupees to the other party. So liquidated compensation मतलब वो compensation जो पार्टी पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं और डिटरमाइन कर लेती हैं. Unliquidated compensation means a compensation which is not already decided by the parties. So in the case of tort we always get unliquidated compensation. अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड कंपेंसेशन क्यों मिलती है. We get unliquidated compensation in tort because we don't know that who will commit tort against us. हमें पता नहीं है कि कौन हमारे खिलाफ टॉर्ट करेगा और किस तरह का टॉर्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पहले से डिटरमाइन नहीं होता. लेकिन जो लिक्विडेटेड कंपेंसेशन है इट इज़ फाउंड इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्यों पाई जाती है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमें पता है कि दैट हु विल कमिट ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट के केस में parties know already each other, but in the case of tort parties don't know each other already. So now this was some basic information regarding the law. Now we come to the tort. So basically tort is a civil wrong. So tort is a civil wrong and it is not a criminal wrong. So this tort has been derived from the word tortum, and tortum means twist or crook. So what is the meaning of term twisted or crook? So twisted or crook means something wrong or which is not according to law. Something wrong which is not according to law. So now we come to the definition of tort. The definition given by Winfield is the most appropriate one, and according to this definition, tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by law. टॉर्ट में जो लाइबिलिटी अराइज होती है वो किसी ब्रीच ऑफ ड्यूटी से होती है. अब ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है? ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब है किसी अपनी ड्यूटी का पालन ना करना. सो सपोज लॉ हैज इम्पोज्ड सर्टेन ड्यूटीज अपॉन अस and if we do not comply all those duties, then it will be considered that we have committed the breach of that duty. So according to the definition of tort by Winfield, tortious liability जब arise होती है when we commit the breach of any duty, and this duty is primarily fixed by law. और ये ड्यूटी हम पर कौन फिक्स करता है? This duty is fixed upon us by law. ये ड्यूटी हम पर लॉ फिक्स करता है, तभी हमारी इसमें लीगल लाइबिलिटी होती है. अगर ये ड्यूटी हम पर सोसाइटी के द्वारा फिक्स की जाती तब ये हमारी लीगल लायबिलिटी नहीं होती, रादर इट वुड हैव बीन कंसीडर्ड एज ए मॉरल लायबिलिटी. नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स and the whole tort is based upon this particular maxim, and the maxim is ubi jus ibi remedium. Ubi jus ibi remedium here means where there is a right there is a remedy. It means that if law has given us certain rights, then law has also given us certain remedies if these rights are violated. अब हम इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं. अगर कानून ने हमको कुछ राइट्स दिए हैं और वो राइट्स हमारे कोई पर्सन वायलेट करता है, देन वी कैन अप्रोच टू कोर्ट अगेंस्ट दैट पर्सन. तो हम उस पर्सन के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आई हैव द राइट टू स्टडी पीसफुली, मेरा शांति से पढ़ने का अधिकार है, बट इफ समबडी इज क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन माई स्टडी देन आई कैन टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन. सो according to this maxims ubi jus ibi remedium, our every right has a remedy, and if any of our right is violated by anyone, then we can take legal action against that person. Now we come to the another maxims, and that is damnum sine injuria. Damnum sine injuria means damage without injury. Now we will understand these two terms, damage and injury. So damnum means damage, sign means without, injuria means injury. So damage क्या है? So damage can be considered as the financial loss or any other loss.
बट इंजरी क्या है? इंजरी इज द वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ ए पर्सन, वायलेशन ऑफ लीगल राइट ऑफ ए पर्सन. So in the case of tort, liability only arises in the case of injury. tort में हमारी liability तभी होती है जब हम किसी पर्सन के लीगल राइट का वायलेशन करते हैं या हम किसी पर्सन को इंजरी कॉज करते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि इंजरी क्या है, ये हमने समझा. इंजरी इज द वायलेशन ऑफ लीगल राइट. नाउ वेयर दिस इंजरी कैन बी कॉज्ड. सो दिस इंजरी इज सिमिलर इन द केस ऑफ क्राइम as well as in the case of tort, and in IPC it has been defined under section 44 of IPC, and according to section 44 of IPC, injury can be caused to any person in the body, mind, reputation and property. किसी भी पर्सन को इंजरी 4 जगह हो सकती है, एंड फर्स्ट इज बॉडी. बॉडी कैसे हो सकती है? देखो इंजरी हम एग्जांपल से समझते हैं. सपोज समबडी स्टैब यू, आपको कोई चाकू मारता है, देन यू विल सफर इंजरी इन योर बॉडी. नाउ वी कम टू द माइंड. माइंड, इफ समबडी इज ब्लैकमेलिंग यू, आपको कोई ब्लैकमेल करता है, इट मीन्स दैट पर्सन इज कॉजिंग इंजरी टू योर माइंड. थर्ड, रेपुटेशन. सो इफ समबडी इज डिफेमिंग यू, अगर आपको कोई डिफेम कर रहा है, आपकी डिफेमेशन कर रहा है, देन दैट पर्सन इज कॉजिंग इंजरी टू योर रेपुटेशन. नेक्स्ट, प्रॉपर्टी. So if somebody is taking your property or committing the theft, robbery, extortion with respect to your property, then it will be deemed that injury has been caused to you with respect to your property. So अगर किसी भी person को इन 4 things में कोई injury cause की जाती है, then that person will have the right to take against that person, to take action against that person who has caused injury to this person. Now we come to the meaning of this doctrine, this damnum sine injuria, and according to this damnum sine injuria, if financial loss or damage is caused to a person but no legal injury has been committed to that person, then that person will not have the right to bring action. Means अगर किसी person को हम कोई financial loss cause करते हैं या कोई और loss cause करते हैं, लेकिन हम उसके लीगल राइट का वायलेशन नहीं करते, तब वो पर्सन हमारे अगेंस्ट कोई लॉ में एक्शन नहीं ला सकता. दिस इज प्रोवाइडेड बाय दिस मैक्सिम डैमनम साइन इंजूरिया. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. टॉम इज रनिंग ए स्कूल इन हिज लोकेलिटी. टॉम अपनी लोकेलिटी में एक स्कूल चलाते हैं. ही चार्जेस 5000 रुपीज एज फी फ्रॉम पर स्टूडेंट. वो हर स्टूडेंट से 5000 रुपये फीस लेते हैं. उसके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. लेकिन जैरी उसके नीबर में एक स्कूल दूसरा बना देते हैं. सो पहले एक टॉम का स्कूल चल रहा है. टॉम 5000 रुपीज़ पर स्टूडेंट से फीस लेते हैं और इसके स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं. लेकिन टॉम के स्कूल के बराबर में जैरी भी अपना स्कूल स्टार्ट कर देते हैं और वो उनकी फीस कितनी होती है? 500 रुपीज़. एंड ही इज़ गिविंग बेटर एजुकेशन देन मिस्टर टॉम. अब कंसिक्वेंट क्या होता है कि सारे बच्चे टॉम के स्कूल से अपने नाम कटाकर जेरी के स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है. सो नाउ इन दिस एग्जाम्पल टॉम सफर्ड फाइनेंशियल लॉस. सो क्वेश्चन इज दैट whether Tom can bring legal action against Jerry in the given factual situation. So answer is no. इस सिचुएशन में टॉम जेरी के अगेंस्ट एक्शन नहीं ला सकता. अब क्यों नहीं ला सकता? इसलिए नहीं ला सकता क्योंकि जेरी हैज एक्सरसाइज्ड हिज ओन राइट्स एंड ही डिड नॉट कमिट द वायलेशन ऑफ द राइट ऑफ टॉम इन दिस गिवन सिचुएशन. नाउ वी कम टू द सेकेंड लीगल मैक्सिम, दैट इज इंजूरिया साइन डैमनम. Injuria means injury, sign means without, and damnum means damage. So this is the second maxims of law of tort, and it provides that if a legal right of a person is violated, then that person will have the right to take action, even that person did not suffer the loss of even a single rupee. Means अगर किसी पर्सन के राइट का वायलेशन हुआ है और भले ही उस पर्सन को एक भी रुपए का लॉस नहीं हुआ है,
तब भी वो पर्सन दूसरे पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लाने का हकदार है, बाय वर्च्यू ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ इंजूरियस एंड डैमनम एज वेल एज द लीगल मैक्सिम्स यूबी जस्ट ईबी रिमीडियम। अब क्योंकि उसके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, सो लॉ हैज गिवन राइट टू हिम टू ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय एन इलस्ट्रेशन। जेरी इज अबव द एज ऑफ 18 ईयर। जेरी की जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा है। एंड ही इज एंटाइटल्ड टू कास्ट वोट बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। उसके पास वोट डालने का अधिकार है। देखिए, जैसे अगर हम अपने देश में देखें तो वी हैव आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एडल्ट सफरेज की बात करता है, एंड वी आल्सो हैव द प्रोविजंस इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 दैट आल्सो गिव अस राइट टू कास्ट वोट। सो जेरी की जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा है और उसके पास वोट डालने का एक राइट है। शी वांटेड टू कास्ट हर वोट इन फेवर ऑफ हैरी। अब जेरी अपनी वोट हैरी के फेवर में कास्ट करना चाहती है, बट टॉम एन इलेक्शन ऑफिसर डिड नॉट अलाउ हर टू कास्ट हर वोट। तो टॉम कौन होता है? टॉम एक इलेक्शन ऑफिसर होता है और टॉम जेरी को वोट डालने के लिए अलाउ नहीं करता। आल्दो हैरी वॉन द इलेक्शन। हैरी मीन्स जिस पर्सन को जेरी वोट देना चाहती थी वो कैंडिडेट इलेक्शन को जीत जाता है। नाउ क्वेश्चन वाज दैट वेदर जेरी कैन ब्रिंग एक्शन इन द गिवन फैक्चुअल सिचुएशन। सो आंसर इज यस। क्या इस फैक्चुअल सिचुएशन में जेरी केस कर सकते हैं टॉम पर? आंसर इज यस। क्यों? बिकॉज द लीगल राइट ऑफ जेरी हैज बीन वायलेटेड बाय टॉम, एंड इफ हर लीगल राइट हैज बीन वायलेटेड then she has every right to bring action against the wrongdoer, that is Tom, in this situation or in this example. So that's all for today, my dear students. If you have any doubt, you may mention in the comment box. We will reply. Thank you very much. I will come again with the next topic. Till then, thank you very much. Goodbye.